Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Yes students, we have started with your chapter number 8 in our previous class, and now on this video we will talk about and we will discuss about the question answers that has been given to us in your chapter number 8. So we will do some exercise in this chapter. So let's begin it. First question. You have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. List 5 of these. So non-farming work activities जो की जाती हैं लोगों के द्वारा रूरल एरियाज में, वो हमें लिखनी है. So you can write your answer in this way. First, making basket, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. Okay. Then second will be teaching. Third, washing clothes. Fourth, weaving, and 5 will be repairing cycles. So these are non-farming activities done by people in rural areas. ठीक है. So इस तरह के काम जो है वो इन तरह के rural areas में किए जा रहे थे. Next question, list the different types of people you read about in Kalpattu who depend on farming. Who is the poorest among them and why? So हमने डिस्कस किया था लैंडलेस फार्मर्स, लेस लैंड फार्मर्स एंड लार्ज लैंड फार्मर्स के बारे में. ठीक है. अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे पुअरेस्ट कौन था. क्या शेखर सबसे पुअरेस्ट था, क्या रामालिंगम, और यू कैन से व्हाट डू यू से अबाउट Thulasi. So here you can write your answer in this way. These people are Thulasi, Sekhar and Ramalingam. So we have read about these people in this chapter. Thulasi is the poorest among them. Why? Because उसके पास में land नहीं था. She don't have their own. She don't have her own land. ठीक है. उनकी families के पास में कोई घर नहीं था. It is because she has no land for her own. She works on Ramalingam's field and earns ₹40 per day. So इतना कम अमाउंट में भी उसे जी तोड़ हार तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी. Although she is not satisfied with her wages, yet she continues her work in Ramalingam's field because of the fact that she can depend on him. ठीक है. सो वो अपना जो उसे पैसा मिल रहा था, जो वेजेस था, उससे सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे डिपेंड रहना पड़ रहा था रामालिंगम पे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी उसे काम की ज़रूरत हो और वो चीपर जो मैन पावर है उसे ना बुला के थुलासी को बुला लेवे, इसलिए उसे वहाँ पे काम करना की ज़रूरत पड़ रही थी. सो क्वेश्चन नंबर 3 is here. Imagine you are a member of a fishing family. Clear? So you have to imagine that you are a member of a fishing family. What will you do? You will assist your family in fishing act. ठीक है. And you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? So आप क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा था इंजन के लिए उन्होंने लोन लिया था, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती थी आफ्टर 8 मंथ्स जो उनके पास में रेस्ट ऑफ द मंथ्स बचते थे 4 मंथ्स, उन्हें जो है मर्चेंट से या फिर जो मनी लेंडर्स थे उनसे लोन लेके अपना घर जो उनसे पैसा लेके बोरो करके क्रेडिट पे अपना घर के खर्चे हाउस होल्ड को चलाना पड़ता था. सो व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल बी अ मेंबर ऑफ फिशिंग फैमिली? सो हियर यू कैन राइट योर आंसर in this way. I would say that it is better to take a loan from bank for this purpose. Why? क्योंकि बैंक के जो लोन है ना वो हमारे पर एक कम ब्याज दर में रहता है, और अगर ये बाहर की जो मनी लेंडर्स होते हैं मर्चेंट्स के थ्रू अगर आप लोन लेते हैं तो वो इंटरेस्ट ऐसे करते हुए बढ़ता जाता है और उसे हम रीपे नहीं कर पाते हैं. ठीक है. आई वुड से दैट इट इज़ बेटर टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर दिस पर्पज देन टू गो टू अ मनी लेंडर. Money lenders usually charge high rate of interest which pushes the borrowers in great hardships. कई बार जो हम borrowers जो देखने को मिलते हैं, जो farmers होते हैं, वे भी क्या करते हैं, they commit suicide kind of acts. So ये सब चीज़ें भी उन्हें कमिट करनी पड़ जाती हैं. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को. Poor rural laborers like Thulasi often do not have access to good medical facilities, good schools and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. So ये जो हमारा टेक्स्ट बुक था उसके फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, we have discussed about equality versus inequality, right? The difference between her and Ramalingam is one of
inequality. Do you think this is a fair situation, my dear students? What will you say about the situation that is facing by Thulasi? ठीक है, what do you think can be done? और क्या improvement के लिए आपके suggestions रहेंगे? You have to give the answer of this question in your own way, but here I am here, no fear that I am giving you and I am providing you the solutions also. No, this is not a fair situation. There should be a ceiling of land. Like where do you live? You live in your own house, in your home. So वहाँ पे सिर्फ ज़मीन ही नहीं होती, उस पर छत भी होती है ताकि वो आंधी तूफान बारिश इत्यादि से आपको बचा सके, शेल्टर देती है. ठीक है, सो ऐसी जगह, ऐसी घर होना चाहिए जिस पे छत भी हो. It will help everyone to have some land where can earns one's livelihood. ठीक है, so where one can earn one's livelihood, opportunity should be equal for all. So जितनी भी opportunity होती है ना, वो सभी के लिए होनी चाहिए, equally सबके पास में opportunity हो ताकि वे अच्छे से अच्छे growth कर सके उनके जीवन में. ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी, और प्राथमिक शिक्षा जो है सभी के लिए कंपल्सरी होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोमोट एजुकेशन अमंग द पुअर. ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी एफर्ट्स किए जाने चाहिए. इट विल हेल्प देम टू नो देयर राइट्स एंड अदर अवेयरनेस. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. Next question will be question number 5. What do you think the government can do to help farmers like Sekar when they get into debt? ठीक है, डिस्कस करना है आपको अपने साथ में, आपके कंपेनियंस के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपकी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, इनके साथ आप इसे डिस्कस करिएगा. ओके, और ये बताइएगा कि क्या हम चीज़ें और जो गवर्नमेंट है कैसे इम्प्रूव कर सकती है शेखर जैसे लोगों की, जो फार्मर्स हैं जिनके पास में लेस लैंड है, उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट के लिए. ठीक है, सो यू कैन राइट योर आंसर इन दिस वे. गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर लाइक शेखर, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, जिसमें ब्याज मुक्त लोन होना चाहिए, और लोन एट द लोएस्ट रेट कैन हेल्प हिम. ठीक है, सो ऐसी फैमिलीज जो शेखर जैसी फैमिलीज है, शेखर जैसे जो लोग हैं, उन फैमिलीज को गवर्नमेंट कम ब्याज दर पे लोन मुहैया करवा सकती है. ठीक है, सीड्स fertilizers and pesticides can also be provided to him on subsidized rate. ठीक है, सो जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, सो ऐसे जो सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, फर्टिलाइजर्स पे भी सब्सिडाइज रेट ही अप्लाई होनी चाहिए ताकि ये लोग अपना जीवन और अपना जो काम है उसे प्रॉपर अच्छे से कर पाए. ठीक है, देन question number 6. Compare the situation of Sekar and Ramalingam by filling out the following table. So हमें ये जो टेबल है इसमें कंपेयर करना है. टेबल हैज़ बीन गिवन टू अस इन योर बुक ऑल्सो. सो यहाँ पे हमें देखना है, इन पैरामीटर्स पे हमें कंपेयर करना है दोनों के सिचुएशंस को. क्लियर? सो यहाँ पे व्हाट विल यू राइट हियर अबाउट सेकर्स लाइफ, जो हमने पढ़ा है, वी हैव रेड अबाउट सेकर्स लाइफ इन दिस चैप्टर, एंड व्हाट वी हैव रेड अबाउट रामालिंगम्स लाइफ. सो वी हैव टू कंपेयर इन ऑन दीज पैरामीटर्स. ठीक है, लाइक लैंड कल्टिवेटेड, क्या कितना लैंड एरिया था दोनों के पास में, वो हमें कंपेयर करना है. ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड था या नहीं, शेखर के पास में कोई लेबर आती थी क्या, या फिर रामालिंगम किसी लेबर को हायर करता था. ओके, लोन्स रिक्वायरमेंट क्या रहती थी, लोन्स रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड था, उन्हें लोन लेना और कहाँ से ले रहे थे. ठीक है, सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि जो तैयार हो जाता है उनका जो धान है, राइस है, पैडी है, उसकी हार्वेस्ट को कहाँ बेचते थे. ठीक है, हार्वेस्ट होने के बाद में वो जो क्रॉप है उसे कहाँ सेल करते थे. ठीक है, अदर वर्क डन बाय देम, क्या कोई और भी काम किए जा रहे थे. सो यू कैन राइट योर आंसर. सो हियर हमने यहाँ पे टेबल में इसके आंसर्स जो है वो फिल कर लिए हैं स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे वी विल कंपेयर विद शेखर एंड रामालिंगम, उसके पास में इन पैरामीटर्स के ऊपर हम कंपेयर करेंगे. सो फर्स्ट पैरामीटर इज लैंड कल्टिवेटेड. सो कितना लैंड था दोनों के पास में वो हमें कंपेयर करना है. 2 एकर्स, शेखर हैव 2 एकर्स ऑफ लैंड. ठीक है, और उसके पास में रामालिंगम हैज़ 20 एकर्स. ठीक है, सो ये हमने देखा है. देन वी विल टॉक अबाउट लेबर रिक्वायर्ड. सो क्या लेबर आती थी इन दोनों के पास में, या इनमें से किसी को ज़रूरत थी या नहीं थी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट शेखर, नो लेबर रिक्वायर्ड बिकॉज दे डू वर्क टुगेदर. उनकी फैमिली जो है मिलके काम कर लेती थी वहाँ पे. ठीक है,
and if we talk about Ramalingam, he hires labor. ठीक है. Then third is loan required. Loans required, yes, हमने देखा लोन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अलग अलग जगहों से. Saker, he requires loan for seeds, fertilizers, pesticides, etc. He takes loan from the traders. So जो traders हैं, व्यापारी, merchants वगैरह जो businessmen हैं वहाँ के, उनसे ये लोग जो मनी लेंडर्स हैं, इनसे सेकर जैसी फैमिलीज के जो लोग हैं ये क्रेडिट पे बोरो करते हैं मनी को. ठीक है. एंड इफ वी टॉक अबाउट रामालिंगम, ही टेक्स लोन्स फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक. ठीक है, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेता है. क्यों लेता है? फॉर एस्टैब्लिशिंग अ राइस मिल. ठीक है, उसकी एक मिल भी थी ना, राइस मिल, जहाँ पे सेकर काम करने जाता था. ठीक है, सो वहाँ पे उसी स्थापना करने के लिए उसने लोन लिया था. ठीक है. सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट. सो अब जो इनकी तैयार धान है इसे कैसे बेचते थे क्रॉप्स को? ही सेल्स अ फ्यू बैग्स ऑफ पेडी टू पे बैक द लोन. ठीक है, सो अब ट्रेडर को वापस ही उसे कुछ बैग तो अपने घर के लिए रखे, प्लस जो एक्स्ट्रा बैग है उसने लोन चुकाने के लिए दे दिए. द राइस दैट इज प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स. अब ये क्या करता था, अपने नियर बाय जो एरियाज है वहाँ की जो ट्रेडर्स रहते थे उनको ये सेल कर देता था. एंड गेट सब्सटेंशियल इनकम. और इस तरह से अपने लिए इनकम के साधन जुटा रखे थे इसने. And if we talk about the last parameter, other work done by them. So इनमें से किसके द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे थे ये देखना है. So Seker has a hybrid cow whose milk he sells in the local milk cooperatives. ठीक है, सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी उसमें वो अपना जो हाइब्रिड काउ से जो मिल्क प्राप्त होता था उसे सेल कर देता था. एंड इफ वी टॉक अबाउट रामालिंगम, रामालिंगम क्या करता था? ही ओन्स अ राइस मिल एंड अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया है एंड वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज. गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स.